Hello to all. I Dr. Ramandeep Par, Faculty, Government Medical College and Hospital, Chandigarh. So today we are going to discuss about the first stage of labor. In our last lecture, we have discussed about what is labor, what is normal and abnormal labor, and what are the factors responsible for the onset of birth. And we have also discussed in the last lecture about difference between the true labor pain and the false labor pain. So in our today's lecture, we are going to discuss about first stage of labor. Remember, we have discussed that there are four stages of labor. So our today lecture is basically focused on the first stage of labor. So the first stage of labor, it starts with true uterine contraction. True uterine contraction means with the true labor pain. So starts with true uterine contraction and ends with full dilatation of cervix. When the cervix become completely dilate, we'll say that the first stage has finished. And its duration is 12 hours in primary. Primary, the mother who are pregnant for the first time, like who are delivering the child for the first time, and 6 hours in case of the multi in 6 hours in case of multipara. This is the average duration, and in multipara it can goes up to 8 hours maximum, means maximum limit hogi up to the 8 hours. And the first stage of labor has two phases. First is the latent phase and second is the active phase. So latent phase राजा याद रखना starts with true labor pain up to 5 centimeter dilatation of cervix. सो जब तक 5 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होगा उस चीज़ को हम कहेंगे दैट इज़ अ लेटेंट फेस. राजे अर्लियर हम कंसिडर करते थे अप टू 4 सेंटीमीटर था, जो हम कहते थे कि लेटेंट फेज इज अप टू 4 सेंटीमीटर, बट द नाउ द WHO हैज़ रिवाइज द ड्यूरेशन, इट हैज़ अप टू द 5 सेंटीमीटर. एंड दिस लेटेंट फेज इज अ स्लो फेज एंड लॉन्गर. धीरे धीरे से इनिशियली जब लेबर पेन स्टार्ट होगी तो मदर को धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शंस आनी शुरू होंगी. एंड सेकेंड इज द एक्टिव फेज. एक्टिव फेज स्टार्ट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन टू 10 सेंटीमीटर, दैट इज फुल डायलेटेशन. जब तक हमारे सर्विक्स का कंप्लीटली डायलेटेशन ही हो जाता फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू द फुल डायलेटेशन दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव फेज. राजे एक्टिव फेज हैज फर्दर 3 फेजेस. फर्स्ट इज द फेज ऑफ एक्सेलरेशन, second is phase of maximum slope, and last is the phase of deceleration. मुझे लगता है आप लोगों को फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर. फेज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन are getting increased, this is acceleration. This is phase of maximum slope. मतलब इस टाइम पीरियड पे आके कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है. उसके बाद धीरे धीरे द पेन इज गोइंग टू बी रिड्यूस, दैट इज द फेज ऑफ द डिसलरेशन. सो द फर्स्ट स्टेज इज डिवाइडेड इनटू द टू फेजेस, लेटेंट फेज एंड द एक्टिव फेज. और थोड़ी एंड सम अमाउंट ऑफ डिसेंट. डिसेंट मीन्स द that the presenting part is entering into the lower pole of the uterus. So some amount of descent occur in the first stage of labor. This is descent. Correct? Then is the second stage. Second stage, it starts with full dilatation of cervix and ends with expulsion of fetus. So second stage of labor starts with the full dilatation of cervix and with the expulsion of fetus. Its average duration is 50 minutes in primipara and 20 minutes in the multi. ठीक है, और मैक्सिमम इसका हो सकता है 2 hours,
plus we can say that there is an increase of the 1 hour if the mother has given the epidural. अगर epidural दिया हो उन्होंने for analgesics for the relief of the pain, तो उस केस में 1 hour एक्स्ट्रा लगा के चलना, क्योंकि जब आप epidural देते तो it prolong the period of labor. Then the second stage has further 2 phases. First is the propulsive phase and second is the expulsive phase. Propulsive phase means starts with the contractions, true uterine contractions with descent of presenting part, with descent of fetus. ट्रू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ और फीटस का डिसेंट होना स्टार्ट हो गया. एंड एक्सपल्सिव स्टार्ट्स विद descent of fetus and ends with expulsion. वो हो गया हमारी सेकेंड स्टेज. देन इज द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. सो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर सोचो अपने माइंड में. इट स्टार्ट्स विद द एक्सपल्शन ऑफ फीटस and ends with the expulsion of placenta. ठीक है, ये होगी हमारी सेकेंड स्टेज. एंड इसकी ड्यूरेशन होती है 5 to 15 minutes. On average, its duration is 5 to 15 minutes and maximum is up to 30 minutes. इसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट चाहे प्राइमरी और मल्टी राज्य में जो ज़्यादा फर्क नहीं होते वो सेम होती है. एंड देन इज द फोर्थ स्टेज. इट इज़ द period of critical observation after delivery or after the expulsion of placenta होने के बाद जो critical period and its duration is 1 hour. जो first hour होता after delivery, it is a most critical phase where we monitor for the PPH या फिर कोई और complication. So next we are going to discuss about the dilatation. जब से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया इसमें बोल रही हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम द ट्रू यूट्राइन कंट्रैक्शन टू द फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स. सो डायलेटेशन बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 10 सेंटीमीटर. इसकी रेंज होती है 0 to 10. सो इट इज़ मेजर इन द यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर. सो 0 to 10 सेंटीमीटर हम कैसे बोलेंगे कि सर्विक्स की ओपनिंग है. यूजुअली हम क्या करते राजे, वी मेक यूज़ ऑफ आवर फिंगर. किसकी, अपनी ये इंडेक्स फिंगर एंड आर मिडल फिंगर. इन दोनों फिंगर के बेसिस पे हम बोलते हैं कि कितनी डायलेटेशन है. सपोज जैसे ये मेरी फर्स्ट फिंगर है, इसके टिप अगर सर्विक्स के अंदर इंसर्ट हो रही है, सो इट मीन सर्विक्स इज 1 सेंटीमीटर डायलेट. सो जो हमारी जो सर्विक्स है वो 1 सेंटीमीटर डायलेट हो चुकी है. अगर मेरी 2 फिंगर्स के टिप जा रही है, तो इट मीन्स द सर्विक्स इज 2 सेंटीमीटर डायलेट. अब आगे राजे धीरे धीरे की भी, अगर सपोज मैं बोल रही हूँ कि 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन, 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन होगी जब विच इज इक्वल टू 3 फिंगर्स इंसर्शन. ऐसा नहीं कि हम 3 फिंगर इंसर्ट करेंगे इन साइड द सर्विक्स. वील इंसर्ट ओनली 2 फिंगर, आर इंडेक्स एंड मिडल. 3 मतलब सपोज जैसे मैंने ये पेन यहाँ पर रख लिया, तो जितनी मीन्स जितना 3 फिंगर्स का गैप है उतनी हमारी जो सर्विक्स के अंदर हमारी फिंगर्स खुल रही हैं. Then is for the way saying about the 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन जब हमारी जो ये 3 फिंगर्स है इनका गैप ऐसे प्रॉपरली लूज हो रही हैं. एंड देन फर्दर इज अबाउट 6 सेंटीमीटर. अगर मैं 6 सेंटीमीटर डायलेटेशन बोलूँगी, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 फिंगर्स. 4 फिंगर्स मतलब ये 4 फिंगर के बीच में जितना ये डिस्टेंस है. सो इंसर्ट तो हम सिर्फ करेंगे हमारी ये 2 फिंगर, फिर हम इसे डायलेट करते करते. सो वी कैन से दैट द डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इज अप टू द 6 सेंटीमीटर. एंड ऐसे ऐसे आगे डायलेट करते 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 अप टू द 10 सेंटीमीटर. एंड जो डिस्टेंस होता है वी मेजर इट विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग टेप. सो इसमें जो डिस्टेंस है वो है इन द सेंटीमीटर. सो दैट इज द डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स. Now moving forward, we are going to discuss about the events in the first stage of labor. So first stage of labor की क्या physiology है राजे. first stage of labor में 3 चीज़ें होती हैं. First is the dilatation, second is the इफेसमेंट, डायलेटेशन हो रही है, इफेसमेंट हो रही है. एंड थर्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट. अगर आपने लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था फिजियोलॉजी ऑफ लेबर ध्यान से सुना होगा तो शायद ये आपको समझना बहुत इजी काम है.
सो अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ पिछला लेक्चर ज़रूर सुनना, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायलिटेशन, जो हमारा फर्स्ट इवेंट होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में. सो डायलिटेशन क्यों हो रही है, व्हाई इट इज अकरिंग, देयर आर टू ट्रू रीजन. फर्स्ट इज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर एंड सेकंड इज अ एक्चुअल फैक्टर. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है हमारे डायलिटेशन के लिए? फर्स्ट इज ड्यू टू द हॉर्मोन्स. हार्मोनल चेंजेस हुई लाइक द ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने अपना वो करना स्टार्ट किया. देन इज ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड सप्लाई. इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द सर्विक्स, इट लीड्स टू इट्स डायलिटेशन. एंड अनदर रीजन इज द हाइपरट्रॉफी. जैसे जैसे हमारी ये सर्विक्स और ये ग्लैंड्स ये बड़ी हो रही हैं, इट विल लीड टू द डायलिटेशन. एंड अनदर रीजन फॉर दिस इज द ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द कोलेजन. अगर याद होगा आपको कि भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि भी एज द वाटर कंटेंट ऑफ सर्विक्स इंक्रीज, इट लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ द कोलेजन. अब जब कोलेजन ब्रेक डाउन होगा तो इट विल लीड टू द डायलेट एंड राइपन्ड सर्विक्स. सो ये रीजन है हमारी कोलेजन ब्रेक डाउन के कारण डायलिटेशन हो रही है. Then is the actual factor for the dilatation. We are discussing the events of first stage का event हमारा क्या है? Dilatation, effacement and the formation of lower uterine segment. We are discussing about the dilatation. Dilatation क्यों हो रही है? दो reason है. First is the predisposing and second is the actual. Predisposing factor हमने कर लिया. अब आगे हम करने जा रहे हैं actual factor. Actual factor के अंदर है first is polarity of the uterus. See राजा यहाँ पे देखो, these are the longitudinal muscle fiber and these are the circular muscle fibers. So these longitudinal and the circular muscle fibers are attached to it like a bucket holding. जैसे bucket को नीचे से hold करें ना हैंडल के साथ, so ये muscles इस तरीके से attached है ना bucket holding manner. So जब राजे हमारी contraction यहाँ पे ऊपर आ रही है, so it is putting pressure on the circular muscles also. ऊपर से contraction आ रही है, it is putting pressure on the circular muscle which will leads to it dilatation. So this coordination between these longitudinal muscles and this dilatation of cervix is called as polarity of uterus. ठीक है, क्लियर है? हमारा फर्स्ट इज पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस. सेकंड इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स. सो वी ऑल नो दैट देयर इज अ एमनियन, कोरियन which is attached to all over the decidua except at the internal os. इंटरनल os को छोड़ के बाकी हर जगह पे ये हमारी मेम्ब्रेन्स हैं. सो जैसे ही फीटस इज गोइंग इनटू द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस, जैसे बच्चा ऐसे नीचे को आ रहा है, ऊपर से ये देखो हमारी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं. जो एमनियोटिक फ्लूइड है हमारे के बच्चे के आसपास, इट इज डिवाइडेड इनटू टू. First is a forewater, second is a hindwater. Forewater is the amount of the amniotic fluid which is present in the lower pole of the uterus. So जो ये forewater है, it is putting pressure on the lower pole of uterus on the cervix which will lead to it dilatation. थर्ड रीजन फॉर द डायलिटेशन इज अ फीटल एक्सेस प्रेशर. राजी ये देखो आप, यहाँ पे हमारी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रही है. वी नो दैट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हैव अ फंडल डोमिनेंस. फंडस से वो आती हैं एंड इट इज पुटिंग प्रेशर ऑन द फीटस. सो ये देखो हमारा जो फीटस की वर्टिब्रल कॉलम है, इट इज लिटिल लाइक ए फ्लेक्स्ड. जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से स्टार्ट हुई, इट इज गेटिंग इलॉन्गेटेड. सो ये जो फंडल डोमिनेंस से कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, इट इज पुटिंग प्रेशर ऑन द फीटस. जो फीटस की ये जो बैक है, इट इज गेटिंग इलॉन्गेटेड. जैसे कोई चीज ऐसे थी अब ऐसे हो रही है, सो डेफिनेटली इट विल पुट प्रेशर ऑन द सर्विक्स एंड विल लीड टू इट्स डायलिटेशन. ठीक है, हमारा थर्ड रीजन क्लियर हो गया राजे. एंड नेक्स्ट इज द विस्सर टर्गो. विस्सर टर्गो मतलब कि भी डाउनवर्ड प्रेशर बाय अ fetus and
upward pressure by a लोअर यूट्राइन सेगमेंट. एक तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है एंड एक नीचे से लोअर यूट्राइन सेगमेंट आ रहा है. सो विच विल लीड्स टू द डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स. इट इज लाइक टू ईच एंड एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो जैसे वो नीचे हो रहा है सिमिलरली ऊपर को थ्रस्ट जा रही है, विच विल लीड्स टू द स्ट्रेचनिंग एंड डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स. सो दिस इज अ विसटर को. सो क्लियर. हमारा जो फर्स्ट इवेंट होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, दैट इज अ डायलिटेशन. दो रीजन है, प्री डिस्पोजिंग एंड एक्चुअल रीजन. एक्चुअल में पहले हम चल गया पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस, सेकेंड इज द विस्टर टर्गो, एंड देन इज द फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ द मेम्ब्रेन्स. दिस ऑल लीड्स टू द डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स. So now Rajan, next we are going to discuss about the effacement. Effacement अगर आप लोगों को याद हो हमने पहले भी डिस्कस की थी effacement. So the uterine contractions which are coming from the top, यहाँ से contraction आ रही है. It is not only pushing the fetus into the lower pole of the uterus, it will leads to the dilatation and the effacement. And basically what is effacement? Effacement ये चीज़ है, ये देखो राजा, ये हमारा आ गया. दिस इज आर यूट्रस. ये हमारा है यूट्रस का अपर यूट्राइन सेगमेंट. दिस इज द लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड दिस इज आर सर्विक्स. सो ठीक है, हमारी कॉन्ट्रैक्शन अजय क्या हुई, यहाँ से आनी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई. सो जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुई, अगर थोड़ा सा याद हो, साथ साथ में क्या होती है रिट्रैक्शन. रिट्रैक्शन इज अ परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ द लेंथ. सो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हमारे अपर पार्ट में आ रही है. अपर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर छोटा 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 होना स्टार्ट हुआ. सो व्हेन देयर इज दिस प्रोसेस इज अकरिंग इन द अपर सेगमेंट, सो इट इज मेंटेनिंग अ पुल ऑन द लोअर पार्ट. सो इस लोअर पार्ट पे ये क्या कर रहा है, एक पुल क्रिएट कर रहा है. जब ये लोअर पार्ट पे पुल क्रिएट क्या होगा, सो इट विल lead to the merging of the cervix into lower pole of the uterus. So ये जो हमारा cervix है, it will get merged into the lower uterine segment. That is called as effacement. Effacement is when the cervix gets incorporated into the lower uterine segment. उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इफेसमेंट. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे लोअर यूट्राइन, अपर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट या सर्विक्स है. और जब हमारी इफेसमेंट हो जाएगी तो क्या बचेगा, सिर्फ हमारा अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट. सो सर्विक्स हमारा क्या आ चुका, इट इज गेट इफेस्ड इनटू द सर्विक्स. और याद रखना दादी, जो इफेसमेंट होते हैं इट इज मेजर इन द परसेंटेज. इसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं यूजुअली. व्हेन इट इज अ थिक तो हम बोलेंगे कि इट इज अ 0% इफेस्ड. एंड इफेसमेंट इज कंप्लीटली ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड फील ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. जो बंदा उसको कर, इट इज अ काइंड ऑफ आर, we can say that a observation which is done by a healthcare provider. and याद रखना राजे एक टिप की भी, जो प्राइमी होती है उनमें जो होती है पहले इफेसमेंट एंड देन इज द डायलिटेशन. डायलिटेशन बाद में होगी जो प्राइमी है. एंड इन केस ऑफ द मल्टी, both effacement and dilatation, both effacement and dilatation occurs together. ठीक है, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ गया फॉर्मेशन ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. सो राजा ये देखो, ये अपर पार्ट है, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट और ये हमारा सर्विक्स. अब सिंपली इस डायग्राम से देख लो. एंड व्हाट इज इफेसमेंट, जब ये हमारा सर्विक्स क्या होगा, इसका पार्ट बन जाएगा. ठीक है, पर अभी हम करें लोअर यूट्राइन सेगमेंट. सी राजा ये देखो, ये हमारा क्या है, दिस इज आर यूट्रस, और यूट्रस का ये चीज क्या है, इस्थमस. एंड दिस इज आर सर्विक्स. ये हमारा बहुत स्मॉल यूट्रस विच इज फार फार अवे फ्रॉम द टर्म यूट्रस. अभी छोटा भी प्रेगनेंसी स्टार्ट ही हुई. एंड दिस इज द बॉडी ऑफ यूट्रस. So isthmus is a part, Rajiv, which is present between the body of uterus and cervix.
उसके बीच में जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। सो जो ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, ये इस्थमस क्या होता है 2.5 mm, इसका साइज इतना छोटा होता है। अब देखो ना, जैसे प्रेगनेंसी हमारी ग्रो होनी स्टार्ट हुई, सो ये क्या होगा, हमारा जो लोअर फीटस है इट इज कमिंग इनटू द लोअर, बोलिए देखो हमारा फीटस नीचे को आ रहा है। सो ये क्या होगा, जैसे हमारी कॉन्ट्रैक्शन अपर पार्ट पे स्टार्ट हुई, सो दिस कॉन्ट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्गर। यहाँ से जो हमारा अपर पार्ट है इट इज़ अ एक्टिव पार्ट, और यहाँ पे जो हमारी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, सो ये क्या करेंगी, जो हमारा इस्थमस है इट इज गेटिंग elongated। इस्थमस क्या होगा हमारा, वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज आर अपर यूट्राइन सेगमेंट, दिस इज आर लोअर यूट्राइन सेगमेंट, दिस इज आर cervix। so what is this, so in this condition what happens is the stretching of the cervix leads to the formation of लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब हमारा जो भी हमारा स्ट्रेच, सो याद है क्या होगा, स्ट्रेचनिंग ऑफ द isthmus leads to the formation of lower uterine segment. Next further we are going to discuss about the clinical course in the first stage of the labor. So पहली चीज हमारा जो पहला सिम्टम क्या होगा, पेन। सो पेन इज अ फर्स्ट सिम्टम, एंड इनिशियली जब हमारी ये लेबर स्टार्ट हुई, द पेन इज कमिंग एट अ ड्यूरेशन ऑफ 14 to 30 मिनट्स के बाद आ रही है, एंड इट इज लास्टिंग फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है, और इवेंचुअली जब हमारी फुल डायलिटेशन की तरफ आ जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शंस आर कमिंग आफ्टर 30 to 5 मिनट्स एंड लास्टिंग फॉर 45 सेकेंड्स। ठीक है राजे, हमारा पहला चीज होगी पेन। देन सेकंड इज द डायलिटेशन एंड इफेसमेंट। डायलिटेशन एंड इफेसमेंट कैसे होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो राजे अर्लियर इट इज सेड दैट in primary dilatation rate is a 1.2 centimeter per hour, and whereas in the multi it is 1.5 centimeter per hour, और बोला जाता था कि मिनिमम रेट इज 1 सेंटीमीटर पर आवर। हमारे इतने टाइम पीरियड में मीन्स 1 आवर में कम से कम हमारी 1 सेंटीमीटर जो सर्विक्स डायलेट होनी चाहिए। बट नाउ WHO सेड दैट कि इफ द लेबर इज स्पॉन्टेनियस है, नॉर्मल है, सो उस केस में 1 सेंटीमीटर पर आवर इज नॉट एनी लिमिट। ऐसा नहीं कि अगर 1 घंटे में मदर की 1 सेंटीमीटर डायलेट नहीं होते तो हम बोलेंगे कि वी नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, वी नीड टू इंड्यूस द लेबर, तो ऐसा नहीं है। सो ये जो हमारी लिमिट थी ये करंटली WHO ने इस चीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं है। सो जो डायलिटेशन और इफेसमेंट होती रहती है, ये सब हमने डिस्कस तो कर ली कि डायलिटेशन एंड इफेसमेंट कैसे हो रही है, किस चीज़ को बोलते हैं। सो क्लिनिकली हाउ वी आर मॉनिटरिंग दिस डायलिटेशन एंड इफेसमेंट। सो क्लिनिकल हम इसको देखते राजे, ये देखो दो ग्राफ देखो जी। जो हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है राजे, इट इज द फ्रीडमैन कर्व। So the first diagram I am showing you is a Friedman curve. Why I am showing you this राजा, जब WHO ने फर्स्ट पार्टोग्राफ मुझे तो आप लोगों ने सबने देखा सुना होगा। So WHO ने जो फर्स्ट पार्टोग्राफ डेवलप किया था that was developed on the basis of this Friedman curve. देखो राजा, ये Friedman curve की 2 phases है, latent phase and the active phase. सो दिस होल इज अप टू द, ये हमारी क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है। यहाँ तक हमारी ये क्या बन गई, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। और ये यहाँ पे है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें बियरिंग डाउन एफर्ट्स होगा और बच्चा बाहर आएगा। और फर्स्ट स्टेज में देखो राजे, ये देखो लेटेंट फेज और एक्टिव फेज में, एक्सेलरेशन फेज यू नो दैट द व्हेन द कॉन्ट्रैक्शंस आर गेटिंग इंक्रीज, देन फेज ऑफ द मैक्सिमम स्लो। यहाँ पे हमारी की कॉन्ट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम है और यहाँ पे आके जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखो इस तरफ राजे हमारा क्या है, मेंशन है डायलिटेशन। सो दिस इज द 0 सेंटीमीटर, 0 मीन्स द सर्विक्स इज द क्लोज्ड। सो ये हमारी होगी 0 सेंटीमीटर। सो यहाँ से स्टार्ट होती होती अप टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज अ फुल डायलिटेशन। इधर देखो राजे, इट इज अ फुल डायलिटेशन। सो ये जो हमारी लेटेंट फेज है, इट इज राजे स्लोअर एंड द लॉन्गर फेज। ये राजे धीरे धीरे जो हमारी ये आगे ग्रो करती है।
ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट द फ्रीडमैन कर्व। अब ये हमारा आ गया, दिस इज सेकेंड जनरेशन पार्टोग्राफ। मुझे लगता है आप लोगों की कुछ केस बुक में आप लोगों ने ये वाला देखा होगा पार्टोग्राफ। दिस इज द सेकेंड जनरेशन पार्टोग्राफ। सो राजे इसमें कोई लेटेंट एंड एक्टिव फेस है, इसमें सिर्फ दो है। ये देखो इस तरफ राजे हमारी आ गई सर्विक्स की डायलेटेशन, और इधर हमारे आगे दो अलर्ट एंड द एक्शन लाइन। अब आगे हमारा आ रहा है थर्ड जनरेशन पार्टोग्राफ विच इज़ द WHO लेबर केयर गाइड, जो WHO का लेटेस्ट है। इसके आगे 8 सेक्शन आ चुके हैं। राजी ये तीनों जो पार्टोग्राफ है ना, जो जनरेशन 1 2 3, ये सारे के सारे पार्टोग्राफ का मैं अलग से लेक्चर लूँगी, उसमें सिर्फ मैं आपको सिखाऊंगी हाउ वी कैन फिल दिस पार्टोग्राफ। तो सिर्फ मैं बता रही हूँ ये डायलेटेशन एंड डिफेसमेंट की हम मॉनिटरिंग इसमें करते हैं। सो जो हमारी थर्ड जनरेशन पार्टोग्राफ में राजी, इसमें देखना कि भी जो लेबर की प्रोग्रेस है, इट इज फ्रॉम 5 सेंटीमीटर। ये देखो 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन दिया। सो 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन मीन्स एक्टिव, latent and active दो हमने की थी ना। फर्स्ट स्टेज इज डिवाइडेड इन 2 phases, latent means up to the 5 and active is from the 5 सेंटीमीटर to 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन। सो ये इधर हमारी इसकी प्रोग्रेस मॉनिटर की हुई है। सो दिस इज हाउ वी कैन नोट डाउन द डायलेटेशन। देन अनदर इज अ मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स का स्टेटस इसमें क्या होता है, यूजुअली इन फर्स्ट स्टेज इट इज इंटैक्ट, मेम्ब्रेन्स रप्चर नहीं होती है। अगर मेम्ब्रेन्स हमारे लेबर से पहले रप्चर हो जाए, इसको हम बोलते हैं प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, PROM। सो यूजुअली क्या होगा, जैसे धीरे धीरे हमारा सर्विक्स क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है। सो जैसे कॉन्ट्रैक्शंस आई, मेम्ब्रेन्स विल बल्ज आउट, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगी, मेम्ब्रेन्स विल रिसीड इनसाइड। वो दोबारा से जो फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट सपोज हेड है, तो दोबारा से उसको टच कर जाएंगे। सो मेम्ब्रेन्स यूजुअली इंटैक्ट रहती है। और जब भी आज ये मेम्ब्रेन रप्चर होती है, इट विल लीड टू द escape of the large volume of the amniotic fluid. Then is the effect on the mother. So mother पे क्या हम clinical feature discuss कर रहे हैं। देखो पेन आ रही है राजू, तो क्या होगा, मदर को फटीग होगा। देयर इज अ इंक्रीज इन द पल्स रेट, 10 to 15 बीट्स पर मिनट मदर की क्या होगी, पल्स रेट इंक्रीज होगी। देयर इज ऑल्सो द इंक्रीज इन द रेस्पिरेशन रेट, एंड यूजुअली कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट एनी इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर पर, राजी ये कोई इफेक्ट नहीं डालती। देन ऑन द फीटस, सो जब तक यूजुअली हमारा राजी जो मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट रहती है, वो फीटस पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं डालती। बट अगर कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तो याद करो हमारा थर्ड लेक्चर था क्या, अगर कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, इट विल लीड टू द डिक्रीज इन द फीटल हार्ट रेट बाय 10 to 15 बीट्स पर मिनट। ठीक है। सो इसके साथ राजे हमारे क्लिनिकल कोर्स इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या खत्म हो रहे हैं। हमने फर्स्ट लेबर की स्टेजेस क्या थी वो डिस्कस की, फिर जो फर्स्ट स्टेज के क्या इवेंट्स, फिजियोलॉजी, एंड देन इज द क्लिनिकल फीचर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। सबसे पहले हम जो एविडेंस बेस्ड, जो अभी WHO ने गाइडलाइंस रिसेंटली दी है, उसमें क्या है, पहली चीज नॉट रिकमेंडेड, अनीमिया ऑन एडमिशन not recommended, perineal shaving not recommended, continuous cardiotocography during labor not recommended, pain relief for preventing labor delay not recommended, early amniotomy oxytocin नहीं recommended, and oral fluids and the food। oral राजे इसमें fluids में बेसिकली राजे क्या होता है, जो हमारे IV fluids है उसके लिए IV फ्लूइड, एंड जो सॉलिड्स है फूड में वो क्या है, नॉट रिकमेंडेड। रिकमेंडेड क्या है, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर देनी है, कंपेनियन, यस कंपेनियन ऑफ एनी चॉइस इज अलाउड। डेफिनेशन ऑफ द लेटेंट एंड एक्टिव फेस है अप टू 5 सेंटीमीटर, एक्टिव इज 5 सेंटीमीटर टू द 10 सेंटीमीटर। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया हम मदर को दे सकते हैं, एंड ओपियोइड एनाल्जेसिया फॉर द पेन रिलीफ इज रिकमेंडेड। Then is antiseptic and asepsis. We need to clean the all the perineum with the antiseptic solution like the 10 in this condition like 10% Dettol वगैरह से हम क्लीन कर सकते हैं। Then is encouragement and assurance। राजी yes, stress and anxiety क्या करती है, it prolongs the labor, so we need to assure the mother regularly so that there is a decreased need of the pain relief, decreased need for the medication. Then activity and ambulation, Raje, in early labor
ambulation is allowed. Mother can ambulate. And upright position is upright position rather than recumbent position. से ज़्यादा हमें कौन सी पोजीशन देनी चाहिए मदर को? upright, because it upright positions helps to decrease the duration of labor. It also decrease the need for analgesia or any kind of drug to induce the labor. And any position which is comfortable to mother is recommended. ठीक है राधे, ये हो गया हमारे related to the ambulation. Then next is a nutrition during labor. Solids, big no, नहीं देने. Oral fluids, yes, she can take the oral fluid. And in case of cesarean section, राजा अगर C section है तो उस केस में क्या करेंगे? Then in cesarean section from last 6 hours no solid and from 2 hours no liquid. ठीक है, that is in case of the cesarean section. And अच्छा we can inform the mother that isotonic जो drinks होती हैं it is more beneficial than water in the labor. ये मदर को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. देन IV हाइड्रेशन. राजीव मुझे हम लोगों आप सबको पता है कि भी लेबर लीड्स टू द डिक्रीज GI एम्प्टिंग. हमारा जो स्टमक है वो इतनी जल्दी एम्प्टी नहीं होगा लेबर के कारण. लेबर लीड्स टू द डिक्रीज GI एम्प्टिंग. सो जिसके कारण क्या होगा? इफ़ देयर इज़ अ नीड ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, अगर GA वगैरह देना हो तो इट विल लीड टू द रिस्क ऑफ निमोनिया और एस्पिरेशन. तो चांसेस हैं क्योंकि स्टमक एम्प्टी नहीं होगा तो एनेस्थीसिया जब हम देंगे तो मे बी मदर कैन एस्पिरेट इट. सो इसलिए हम जो सॉलिड फूड है उसको रेकमेंड नहीं करते. एंड देयर इज सच कोई इंडिकेशन नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि हम लोगों ने IV फ्लूइड स्टार्ट करने हैं. IV फ्लूइड्स कैन बी गिवन इन केस ऑफ अगर हमें लग रहा है कि भी हमें डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स लग रहे हैं. एंड द डेफिनेटिव इंडिकेशन फॉर IV फ्लूइड्स इन लेबर आर अगर हमने रीजनल एनेस्थीसिया दी है, मदर के डिहाइड्रेशन है, पुअर प्रोग्रेस इन लेबर है, डायबिटीज़ एंड PPH, उन केस में हमें IV हाइड्रेशन स्टार्ट करनी है. Then is a bladder function encourage the mother to empty her bladder. हम बोल सकते हैं 2-2 घंटे बाद कि हाँ जी आपने अपना ब्लैडर एम्प्टी किया है कि नहीं. बिकॉज अगर ब्लैडर फुलनेस होगी इट विल लीड टू द डिक्रीज डिसेंट. तो हेड हमारा जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो नीचे नहीं आएगा. एंड इफ़ देयर इज़ अ फुलनेस अगर हमें लग रहा है तो वी कैन कैथेटराइज द ब्लैडर. देन मॉनिटरिंग. इन द फर्स्ट स्टेज हमने 3 तरह की मॉनिटरिंग करनी है: मेटर्नल, फीटल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन. मेटर्नल में राजी देखो मदर का हमने जो पल्स है वी हैव टू असेस एवरी हाफ आवरली. देन इज द ब्लड प्रेशर को हम क्या करते हैं 2 आवरली असेस करते हैं. अगर हाइपरटेंशन है तो मोर फ्रीक्वेंटली. ठीक है राजे. देन नेक्स्ट इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर यूजुअली हम क्या करेंगे अगर मेम्ब्रेन्स आर नॉट रप्चर तो हम क्या करेंगे जो हमारा टेम्परेचर होगा राजे उसको क्या करेंगे वी विल मॉनिटर 4 आवरली. एंड इफ मेम्ब्रेन्स आर रप्चर देन वील मॉनिटर 1 आवरली. फिर हम 1-1 घंटे के बाद हम टेम्परेचर देखेंगे. ये होगी हमारी मेटर्नल मॉनिटरिंग. बाकी मदर देखना कि भी लाइक संकन आइज वगैरह वो डिहाइड्रेशन के साइंस आपने देखने हैं. देन इन द फीटल मॉनिटरिंग राजे बच्चे की मॉनिटरिंग हमने क्या करना है वी हैव टू डॉक्यूमेंट द फीटल हार्ट रेट. वो सब हम किस में करते हैं जो पार्टोग्राफ होता है उस पर हम सारी ये मॉनिटरिंग करते हैं. तो राजू इसमें क्या करेंगे इन केस ऑफ द फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में जो लो रिस्क मदर है और इधर ही हमारी है हाई रिस्क मदर.
जो हमारी लो रिस्क मदर है उनमें हम क्या करें, फीटल हार्ट रेट 30 मिनट्स में देखेंगे और हाई रिस्क में हम देखेंगे 15 मिनट्स में। एंड इन द सेकेंड स्टेज हम देखेंगे 15 मिनट्स इन लो रिस्क एंड 5 मिनट्स इन द हाई रिस्क। ये हो गया हमारी मॉनिटरिंग। देन इज द पेन मैनेजमेंट। राजे पेन को हम कैसे रिलीव करेंगे, विद द फार्माकोलॉजिकल मेथड्स एंड द नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड। फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में राजे एक तो हमारा आ जाएगा IVIM ड्रग्स दे रहे हैं, या फिर हम कोई इनहलेशनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, या फिर एपिड्यूरल। इनहलेशन में राजे हम क्या करते हैं, यूजुअली नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं हम 50:50 विद ऑक्सीजन, एंड 5 to 6 ब्रेथ्स आर सफिशिएंट। और जो एपिड्यूरल है एनेस्थीसिया आप लोगों को पता है हम किस में देते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं। जब आप लोगों ने एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है तो वी नीड टू मॉनिटर द blood pressure of mother because it leads to the decrease BP, डिक्रीज ब्लड प्रेशर के चांसेस होते हैं। एंड सेकंड हमने फीटल हार्ट रेट को भी रेगुलरली मॉनिटर करना है। नेक्स्ट आगे हमारे जो IVIM देते हैं, यूजुअली हम यूज़ करते हैं IVIM के अंदर राजे तो हम दे सकते हैं पैथिडीन। पैथिडीन की हम डोज देंगे राजे, इट इज़ 25 mg IM IV और 100 mg हम देते हैं इसको IM। जब भी हम पैथिडीन देंगे राजे याद रखना, इट लीड्स टू द नोजिया वॉमिटिंग एंड ऑल्सो इट ऑल्सो लीड्स टू द डिक्रीज इन द GI एम्पटिक, जिसके कारण क्या होता है, एस्पिरेशन के चांसेस हो सकते हैं अगर हमने जनरल एनेस्थीसिया। सो इसलिए जब भी आप पैथिडीन दोगे सो एंटी एमेटिक हमने साथ में देना ही देना है, एंटी एमेटिक लाइक मेटोक्लोप्रामाइड। इट इज़ मैंडेटरी, जब ये पैथिडीन दोगे तो हमने ये देने देना। और पैथिडीन का दूसरा साइड इफेक्ट जो होता है, it leads to the respiratory depression in neonate। सी पैथिडीन का साइड इफेक्ट है। सो इसके लिए इसका एंटीडोट है हमारा जे नैलोक्सोन। ठीक है, ये हमने देना है। एक हमारी पहली आगे ड्रग पैथिडीन, दूसरे हम ड्रग दे सकते हैं फेंटानिल। सो फेंटानिल के राजे एज सच इसके साइड इफेक्ट कम है, पर उसका ये ड्रॉबैक है कि वी नीड टू रिपीट द डोज वेरी फ्रीक्वेंटली। ये होगा हमारा फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीफ। देन नॉन फार्माकोलॉजिकल आप लोगों को पता है कि भी हाँ जी, वॉकिंग, रॉकिंग, चेंजिंग द पोजिशन, एप्लीकेशन ऑफ द हीट, वाटर थेरेपी एंड ऑल द सेंसरी थेरेपी वी कैन used to relieve the labor pain. And last is a birth companion. A birth companion of choice is recommended in first stage of labor. So इसके साथ हमारी 4 stage complete होगी। Thank you so much.